So, hello बच्चों, I hope all of you are fine. Today we are going to discuss the very important topic as a derivation in the chapter magnetic effect of current. So, in the previous video you have learned how to find out the expression for the magnetic field in case when a current is flowing in a straight current carrying conductor. It is a kind of application of Biot-Savart rule. ये Biot-Savart rule की application ही है. And you can see in the second derivation, or you can see in the case when the current is not flowing in a straight form of conductor, but it is flowing in a circular loop. किसी loop में अगर current flow कर रही है, तो how to find out the expression for the magnetic field at some position or say the axis of the circular loop. So with the help of the Biot-Savart rule, as well as we have to use the concept of the magnetic field determination at the particular point by using right hand palm rule number 1 as well as Maxwell screw rule. उसे भी हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है, जो जैसा कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप. तो कोई एक हमारे पास क्या है, वी कंसीडर अ काइंड ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ हैविंग सम रेडियस से ए. इसकी रेडियस ए है, दिस इज द सेंटर ओ. And this is a circular loop in which current I ampere is flowing, and it is quite well known fact after discussion of the magnetic effect of electric current that as soon as current is flowing in a conductor, ultimately we get a magnetic field nearby the current carrying conductor. With the help of the Oersted experiment we have learned it. इसे हम समझ चुके हैं. So now we are going to find out the expression for the circular loop of radius a. From the center of this circular loop, suppose at x axis at some point say P has taken, where we wish to find out the expression for the magnetic field. Magnetic field यहाँ पे हमको निकालना है. Now suppose this ring or this loop is made up of number of infinitesimally small length element, and in such a case we have chosen such a small length element. यहाँ पे हमने small length element चूज किया डेल्टा L, in which current is flowing to this direction, ऐसे flow कर रही है. This is the current length element IDL. Now let us take the distance from this ideal length element to point P. Suppose this is making some angle phi. ये क्या कर रहे हैं, phi angle बना रहे हैं. Now the magnetic field due to this length element will be outward and just perpendicular to this point, say dB. ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा. दिस इज परपेंडिकुलर. सो टेकिंग dB एज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एज अ मैग्नीट्यूड एज अ रिजल्टेंट, वी कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है. एंड बाय ज्योमेट्री यू नो वेल दैट इफ दिस एंगल इज फाई, दिस विल बिकम आल्सो फाई. तो ये जो आपका हो जाएगा कंपोनेंट, ये dB cos फाई हो जाएगा, and another one will be dB sin phi. Now we talk about the Biot-Savart rule. Biot-Savart rule की बात की जाए तो according to Biot-Savart rule we know that delta B is equal to I delta L sin theta mu naught upon 4 pi I delta L sin theta
बाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज थीटा हियर? थीटा यहाँ पे कितना है? एक्चुअली थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द वेक्टर टू द पोजीशन वेक्टर. इसको हम आर शो कर रहे हैं. लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर विच अल्टीमेटली मेक्स 90 डिग्री, और यू कैन से राइट एंगल एंड विच इज जस्ट आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ये क्या है? आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है. तो यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री रख देंगे तो यू विल गेट डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर. साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई. In the same way as we have taken the upper portion of the current length element delta L, we can take the lower portion having the same length delta L, length element delta L, and it suppose also make same angle phi to this one, and the magnitude of magnetic field is outward perpendicular to this point. ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा. and after getting resolution you will again get it is phi, so it will become dB cos phi. The component of this ideal term will be taken as a dB cos phi as well as dB sin phi. ये फिर से आपको मिल जाएगा. Now if we talk about the net magnetic field component, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इन द फिगर यू कैन इजीली सी दैट dB cos phi component is having same magnitude but in opposite direction will be cancel out the effect each other. तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग बाय द सर्कुलर लूप ड्यू टू द करंट एट सम पॉइंट से P, जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द dB साइन कंपोनेंट. तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B होगा that will be given for the entire of the ring, since dB sin phi is for only the case of the length element dl, and if we wish to find out the overall magnetic field just because of the current flowing in the entire ring will be collectively given by integration of what? Delta B sin phi. Now here delta B and sin phi की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो डेल्टा बी साइन फाई हो जाएगा कितना? देखिए म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल 4 पाई आर स्क्वायर है. तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम बाहर पहले से निकाल रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई इन द एंगल? अगर हम साइन फाई की बात करें तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? साइन फाई इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर आपका हो गया ए अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका? आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन फाई की वैल्यू क्या हो गई? ए बाई आर. इसको भी हम ले लेते हैं बाहर एंड डी फाई, साइन फाई डी फाई, साइन फाई है यहाँ पे, तो ए बाई आर भी आपका क्या हो गया? बाहर आ गया. एंड यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपका ये लेंथ एलिमेंट डी एल. ये देखिए आपने क्या किया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिखा. आई भी कॉन्स्टेंट टर्म है, आर एक पहले से था, और साइन फाई की वैल्यू आपने निकाली कहाँ से? ए बाई आर, ये भी बाहर आ गया. और यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन सिर्फ डी एल. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, चूँकि पूरा लेंथ डी एल पार्ट से मिलकर के बना है, तो इट इज़ गिविंग द कम्प्लीटली द सर्कमफ्रेंस. अगर हम डी एल का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या देता है हमें? पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए देता है, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कितनी बताई है. तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, ये देखिए क्या हो जाएगा? आर क्यूब. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू यहाँ पे ए बाई आर क्यूब. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एल? डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 पाई ए. या इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्यूब? अगर हम r की बात करें तो r क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे x है और ये a है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज r क्यूब? r क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर, आई ए इंटू ए स्क्वायर, एंड 2 पाई
और यहाँ आर क्यूब की जगह कितना हो गया, आर की जगह कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और क्यूब लग गया तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. So this is what the expression for the magnetic field that we have calculated in the case of the ring. इसी में अगर हमारे पास रिंग में नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सर्कुलर लूप कैपिटल N हो जाते हैं तो उसी में क्या कर देंगे, जस्ट आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. So this is the expression for the magnetic field in case of the circular ring. So I suppose ये आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से निकालना है. And direction of the magnetic field, if you wish to find out, then you have to use the right hand palm rule. Now right hand palm rule में अगर हम अपनी डायरेक्शन को इस तरह से रखें यहाँ पे कि करंट हमारी क्या हो रही है, करंट ये आप इस तरह से देख पा रहे होंगे यहाँ जा रही है, एंड डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट परपेंडिकुलर होगा. सो थैंक यू सो मच.